So very welcome all of you in today's video on this Manipur. Manipur is in since May 2023. Manipur has witnessed a lot of violence and the challenges. Now, question remains that why Manipur is still burning, and has India failed Manipur as a state? Are we a state where we are not able to meet the demands of a particular state? And for that, we need to understand the background of this Manipur, कि Manipur में challenge क्या है, and for that, I just need 15-20 minutes to understand this issue in entirety. So if you try to see Manipur, Manipur is a small state in the northeast part of India, which mainly comprise of multiple population, but this mainly comprise of the groups. Now here, there are three tribal groups which are operating in Manipur. One is the Meitei group. Now they are technically not tribals, they are the people who live in the Imphal Valley. तो मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है which has a small valley, which is the Imphal Valley, where majority population resides. Then we have Kukis and Nagas are the ethnic tribals who live in the hilly areas. तो valley है, फिर hilly area है, तो वहां पर वैसे रहते हैं. Now the problem dates hundreds of years ago, where Meitei ruler थे. Meiteis were ruling Manipur since long, and slowly, but they were always impacted by Naga population. तो बगल में Naga groups रहते थे, तो Naga population used to come there. So Meiteis rulers ने म्यांमार में Kuki groups रहते थे, तो there with some kind of arrangement they brought Kukis, they allowed Kukis to come and stay in the hill. उन्होंने hill में उनको allow किया कि आप stay करो. And when these people stayed in the hills, it acted like a buffer. उनको लगा कि Nagas के लिए वो buffer हो जाएंगे, तो that might help them. However, if we cut back to here today, so if you understand Manipur, तो Manipur में अगर आप देखेंगे, so this is the Manipur, and here if you see the population of Manipur, you'll be surprised that major population जो है, that is Meitei dominated. So Manipur में almost 64% population Meitei का है, and remaining 35 or 36% population is of two groups, that is the Nagas and the Kukis. So now if you see here, ये Meiteis यहाँ रहते हैं, and this is the Imphal Valley, and then you have the Nagas dominate these areas, and Kukis dominate these areas. और यहाँ पर हमारा border है, that is Myanmar. So here we have Myanmar. So if you try to see, so पूरे hilly areas में Manipur है, and this is the area where the majority population यहाँ पर रहता है, because it's a valley. Now the problem lies that इसमें the Nagas and Kukis, they have been given ST status. उनको scheduled tribe का reservation का status है. Meiteis on the contrary, majority जो है वो जो Meiteis population है, उनको ST status नहीं, उनको general का status है. They are Hindus, and उसमें भी कुछ लोगों को reservation है, उनको Meiteis में भी कुछ groups को reservation है, and there are 8% Meitei Pangals which are also Muslims. So if you try to see, तो यहाँ पर जो Meitei group है वो majority है. They are controlling the polity of the state, they control the government jobs, हर जगह उनका एक say है, because of sheer numbers they have. अब उस नंबर में समस्या ये आती है that they have been demanding for ST reservation. उन्होंने कहा कि भाई हम तो बाद में कन्वर्ट हो गए, हम तो हिल के लोग थे, यहीं के लोग थे, we converted and we became Hindus, and thereby हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, तो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ट्राइबल स्टेटस हमें मिलना चाहिए, and that is what they have been demanding. अब उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिल पाया, and ट्राइबल स्टेटस जब नहीं मिल पाया, so they went to court and multiple effort has been made. Now here problem क्या आया? Now Kukis and Naga believe that if Meitei already वो dominate करते हैं, population polity को dominate करते हैं, 60 में से 40 MLAs Meitei के हैं, बाकी 20 बाकी लोगों के हैं. So if they get reservation, जो थोड़े बहुत jobs हमें मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे. So that is where, तो ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं local employment, job opportunities को लेके है, because Manipur is a state where limited opportunities are there. So अगर आप देखेंगे तो these are violence infested areas. यहाँ पे आप देखेंगे तो major violence आपका मणिपुर वैली के आसपास हुआ है. These are conflict points. Also there are some areas जहां पर border पे कुछ areas पे conflict point हुआ है. Now further, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो which areas dominated by Meitei, Kukis and Nagas. Now ये एक better map है where you can see this is the valley where majority population resides. और फिर ये आपका these are Naga tribes जो यहाँ रहते हैं, and these are Kuki tribes which lives here and Kukis live here. यहाँ आपका म्यांमार border है. Now Kuki group जो है वो एक tribal ethnic group है. Now these group also live in the Myanmar. So Myanmar में भी वो रहते हैं और वो move करते हैं यहाँ से. They move from the border areas to the Myanmar. अब उसमें एक और confrontation था. Meiteis का मानना है कि because they move here, हमको इनको रोकना पड़ेगा. Because when they move here, they change the dynamics of that. बहुत सारे इसमें
जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो, अच्छा मणिपुर इज अ इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड एरिया, इंसर्जेंसी पहले चल रही है, बट यहाँ पे जो करंट प्रॉब्लम इट इज मेनली बिटवीन टू कम्युनिटीज। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई लास्ट ईयर व्हेन रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को लेके एक हाई कोर्ट, मणिपुर के हाई कोर्ट ने सिंगल जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि मेती को भी एसटी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट इस पे अपना इनपुट दे। दिस वाज प्रोटेस्टेड बाय कुकी ग्रुप, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट जो है वायलेंस में कन्वर्ट हो गया एंड सम पीपल डाइड एंड देन फ्रॉम देयर सीरीज ऑफ वायलेंस स्टार्टेड। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे वायलेंस करती, दूसरा पहले पे करता है, एंड दिस रेप्राइजल यानी आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो, रिवेंज किलिंग्स कर रहे हो या रिवेंज इंपैक्ट कर रहे हो, एंड दिस हैज क्रिएटेड नाउ पॉलिटी डिवाइड हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हो चुका है, बिकॉज उसमें मीतीज भी हैं, कुकीज भी हैं, नागाज भी हैं। नाउ नॉर्मली नागाज एंड कुकीज में भी अपनी लड़ाई है, बट व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम विद मेती वो साथ हो जाते हैं बिकॉज दे लिव इन द हिली एरियाज। तो यू कैन सी हियर तो सारा जो पॉइंट है, एंड मेतीज आर लुकिंग फॉर एसटी स्टेटस। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और ये कहानी इस लेवल पे बढ़ रही है। नाउ इफ यू ट्राई टू गो फर्दर, इन द लास्ट 1.5 year वी हैव सीन मोर देन 250 पीपल हैव डाइड, और यहां पर दोनों कम्युनिटी की तरफ से लड़ाई हो रही है। मोर देन 60,000 पीपल हैव बीन होमलेस, वो होमलेस हो गए हैं, एंड इंटर कम्युनल क्लैशेस बढ़ रही है, एंड इट इज मेनली अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड क्लैशेस, यानी गवर्नमेंट जॉब को ही डिमांड करके कर रहे हैं। व्हेन यू ट्राई टू सी मणिपुर, वहां पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। 1949 के बाद से वहां पर इंसर्जेंसी है, दैट मींस वहां पर कुछ लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं हु आर अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री या इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, दे आर डिमांडिंग मणिपुर को फ्री करिए, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट में पहले से थे। ओके, सो दीज हैव बीन द चैलेंजेस, एंड मीती डिमांड फॉर एसटी स्टेटस डेजिग्नेटेड अ जजमेंट बाय मणिपुर, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, और कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से रहा है। दिस टेंशन हैज बीन देयर नॉट फ्रॉम टुडे बट सिंस डेकेड्स, बट ये रिजर्वेशन के मुद्दे पे ये टेंशन और बढ़ता चला गया। नाउ व्हेन यू सी दैट एथनिक फॉल्ट लाइंस है 60% मेतीज, 25% कुकीज एंड 15% नागास। अब एक और इसमें फॉल्ट लाइन है, दैट इज क्रिश्चियंस, यानी कुकी क्रिश्चियन है एंड मेतीज हिंदू है, तो एक ये एंगल भी आ जाता है। दो करंट कॉन्फ्लिक्ट इज कंप्लीटली एथनिक बेस्ड, बट बिकॉज दे डिफर इन द रिलीजन, तो एक रिलीजियस डिफरेंस भी इनके बीच में है। देन व्हेन यू ट्राई टू सी, तो एथनिक फॉल्ट लाइन तो डे वन से है, दैट मींस ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, एंड माइनॉरिटी हैज अ फीलिंग दैट मेजॉरिटी इज कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज, मेजॉरिटी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। सेकंड इज एक रिलीजियस डिफरेंस भी है। अब जब फॉल्ट लाइन होता है या हम जब डिफरेंट होते हैं तो पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब चूंकि यहां पर बीरेन सिंह इज अ लीडर हु हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो ही इज अ लीडर ऑफ मीती, और बीजेपी के लीडर हैं, और वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, इससे पहले वो कांग्रेस में थे। नाउ दिस पर्सन हैज अ गुड से ओवर मीती कम्युनिटी, इनके जो सन इन लॉ है वो भी काफी अच्छे पॉलिटिकल लीडर है वहां पे। बिकॉज बीजेपी डज नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशन या बेस उनका नहीं है, तो बीजेपी को पता नहीं कि क्या नहीं क्या, बिकॉज इफ दे रिप्लेस मिस्टर बीरेन देन देयर इज नोबडी हु कैन रिप्लेस हिम एज अ लीडर, एंड देयर बाय एक बीरेन पैराडॉक्स है, मेती ग्रुप से होते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन ऑफ रिप्लेसिंग बीरेन, सो दे आर ट्राइंग टू होल्ड द ग्राउंड एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। उसके अलावा देयर इज ऑलवेज अ सेइंग दैट फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट टू ग्रुप, यानी जो नागा एंड कुकी ग्रुप है, मेनली कुकी ग्रुप, दे गेट सपोर्ट फ्रॉम द हिल एरियाज, फ्रॉम म्यांमार एरियाज, वो यहाँ आते हैं। ये भी कहा जाता है कि इलीगल ओपियम की फैक्ट्री, ओपियम का कल्टीवेशन होता है। नाउ व्हेन यू ट्राई टू सी जो मणिपुर का जो पूरा जो आपका बॉर्डर एरिया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर ड्रग जोन। मणिपुर इज वेरी मच फेमस फॉर ड्रग्स, तो इंडिया में ड्रग्स, मणिपुर से मैक्सिमम ड्रग्स जो है उस साइड से आते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई मीती ग्रुप का मानना है कि भाई ड्रग्स में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, एंड दैट इज वेयर डिफरेंस लाइज। दूसरा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है, एक तो असम राइफल्स है, असम राइफल्स ट्रेडिशनली जो है वहां पर बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। देन यू हैव सीआरपीएफ जो बाद में हमने भेजा है, देन यू हैव लोकल पुलिस। Now local police is under the administration of state government, तो सेंटर कोऑर्डिनेट करता है असम राइफल सीआरपीएफ को। इनफैक्ट जो वहां के पुलिस हैं, दे आर आल्सो डायरेक्टली अंडर अमित शाह, जो डायरेक्टली उनको डायरेक्शन देते हैं कि आप ये करो। सो दैट हैज लेड टू अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वहां की लोकल लीडरशिप कुछ और चाहती है, एंड देयर बाई मेतीज ये डिमांड करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वायलेंस इसलिए भी हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इनफ पावर टू हिम टू कंट्रोल थिंग्स। यू हैव ट्राइड टू कंट्रोल द पुलिस पावर, पुलिसिंग पावर आपके हाथ में रहेगी तो ग्राउंड पे चीजें नहीं हो पाएंगी। ओके, देन स्ट्रेन रिलेशन विद असम राइफल। नाउ कुकीज, ऐसा माना जाता है कुकीज के प्रति असम राइफल थोड़े इजी हैं, सॉफ्ट है,
and that is where the violence, in spite of being perpetuated by these people, nothing is being done from the Assam Rifle side. या relatively उनका जो response है that is muted, एक easiest muted response है. So that is also one of the reason कि यहाँ पे Assam Rifles को लेके है. और जब तो गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ को लेके आया, उसमें भी कुकीज ने अपोज किया कि सीआरपीएफ को क्यों लेके आ रहे हैं, और दीस पीपल आर लोकल एंड दे नो थिंग्स बेटर. सो दीज आर द रीजंस. अपार्ट फ्रॉम दैट लीडरशिप वैक्यूम, कोई लीडर नहीं है, डिवाइड हो रखा है, जो लीडर है उन पे सबका ट्रस्ट नहीं है, रूल ऑफ लॉ इज मिसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, कमजोर है. रूल ऑफ लॉ मतलब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मिलिट्री कंट्रोल करती है एरियाज को, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, they get support from their local population. So it's a very difficult situation. And क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट जो ग्रुप्स को है, पॉलिटिकल विल मिसिंग है. गवर्नमेंट के एंड से एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन अप्रोच होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है ऐसा लगता है. एंड डेवलपमेंट डेफिसिट इज द बिगेस्ट रीजन. If you have a job and opportunity, if income, that means your entire focus would be on those areas. And because there is a lack of development, that is the biggest challenge. भी जॉब के लिए क्यों फाइट मार रहे हो? Because opportunities नहीं है. So for that you need to first make peace. आप stability लाएंगे, peace लाएंगे, infra develop करेंगे, opportunities create करेंगे, तब तो job आएगी. The jobs which are available is government jobs. Limited options are there. Business के options नहीं है, कम है. So local population के पास क्या option होगा? Youth will do what? Okay. And both sides से हो रहा है. That means one side is doing, other side is doing. And अपने अपने armed militias बना लिए उन्होंने, अपने अपने areas create कर दिए हैं. All the Meeti group जो all the cookies who lived in the वैली एरिया, उनको निकाल के आपने बाहर कर दिया है. दे हैड टू लीव देयर एरिया. सिमिलरली अदर साइड इज आल्सो देयर. सो दिस इज द होल कॉन्फ्लिक्ट. सो मणिपुर विल रिक्वायर अ स्पेशल एफर्ट. मणिपुर विल रिक्वायर अ स्पेशल एफर्ट in terms of how they are able to handle it. And I personally believe that this conflict is not so simple, because this problem has been simmering since if not months, since decades and centuries. तो एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट को अलग अलग, अच्छा सबकी अलग अलग डिमांड है. फॉर एग्जांपल कुकीज का डिमांड है कि आप अलग हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन दो, हमारा जो एरिया को डिफाइन कर दो और उसको यूटी बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो, आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. तो सच काइंड ऑफ डिमांड्स आर देयर एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. ये हिल टेंशन ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वेयर 64% ऑफ मेती दे लिव इन 10% ऑफ द लैंड एरिया, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का डेजिग्नेशन उनको नहीं है, एंड दे हैव बीन डिमांडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब डेजिग्नेशन. And because of this order of Manipur court, ये सारी problem start हुई, and conflict has escalated to an extent where this problem will remain. तो क्या as a Indian, as a government, we have failed Manipur? The answer is yes. इसमें कौन फंसे हैं? Common people of Manipur, the common people who want peace, who want job, opportunity, they are getting the majority challenges. So एक major internal security threat तो पहले से था, because Manipur has been a insurgency infected area. वहाँ इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे. ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, इंटर कम्युनिटी टेंशन हैज इंक्रीज टू अ लेवल जहाँ पे वो एक बहुत वाइड डिवाइड क्रिएट हो गया है, एंड ओनली टाइम विल टेल हाउ दिस विल हैपन. सो दैट इज हाउ थिंग्स हैज टू बी देयर. वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, और ये समय के साथ होगा. यू हैव टू फर्स्ट ब्रिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, make sure that violence na ho. Strong action should be taken against those people who are involved in violence, and when you do that, a strong deterrence will also be created. Okay, so that is all for all. Thank you very much, and thanks for watching this video. Take care. Bye.